Preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise previous questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIB. So liquidity risk management क्या होता है? What is actually liquidity? What is liquidity? यहां पर मेरे पास पैसा आना है एंड मैंने पैसा पे कर देना है, लेकिन व्हाट इफ मेरे पास आए 80 करोड़ एंड मैंने पे करना है 100 करोड़, तो बढ़ गया ना रिस्क, दिक्कत क्रिएट होगी ना। एंड ये कौन सा रिस्क है? दिस इज अ फंडिंग रिस्क। दिस इज अ फंडिंग रिस्क, जहां पर मेरे पास पैसा नहीं है पे करने के लिए। लेकिन जहां पर जो रिस्क होगा वहां पर पर्टिकुलरली आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के गैप है, यानी कि मैच्योरिटी में गैप है, या फिर पर्टिकुलरली उनकी जो रीप्राइसिंग हो रही है उसमें गैप है, उसकी वजह से जो रिस्क पैदा होगा, जो यहां पर मेरे पास रिस्क पैदा होगा, गैप पैदा होगा, दैट इज अ गैप रिस्क ओवर देयर। यानी कि लिक्विडिटी रिस्क का टाइप है, वो गैप रिस्क कहलाता है, राइट। तो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं एंड पॉजिटिव गैप एंड नेगेटिव गैप को समझते हैं, राइट। यहां पर एक चीज समझिएगा कि जो बैंक है, इसके केस में अगर आपके पास मैच्योरिंग एसेट है, क्या है? मैच्योरिंग एसेट्स हैं, वो आपके पास कैश इनफ्लो जनरेट करेंगे कि कैश आउटफ्लो जनरेट करेंगे? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। मैच्योरिंग एसेट्स आपके पास कैश इनफ्लो को जनरेट करेंगे या फिर कैश आउटफ्लो को जनरेट करेंगे? मैच्योरिंग एसेट्स विल जनरेट द कैश इनफ्लो और द कैश आउटफ्लो ओवर देयर। दोज विल बी जनरेटिंग द इनफ्लोज ओवर देयर। एसेट कौन सा होता है? जैसे लोन से रिकवरी होनी शुरू हो जाए तो आपके पास मैच्योरिंग है ना, वो तो इससे क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो ये पर्टिकुलरली आपके पास क्या जनरेट करते हैं? इनफ्लो जनरेट करते हैं। यानी कि मैं यहां पर अगर एम में लिख रहा हूं, मैच्योरिंग एसेट्स लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास कैश इनफ्लो को जनरेट कर रहा है, यानी कि कैश इनफ्लो आ रहा है। एंड फर्दर जो आपके पास मैच्योरिंग लायबिलिटीज होती हैं, मैच्योरिंग लायबिलिटीज जैसे आपका जो एक डिपॉजिट अकाउंट था वो मैच्योर हो गया, एफडी थी मैच्योर हो गई, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा, तो ये कैश आउटफ्लो को जनरेट करते हैं। यानी कि जो मैच्योरिंग आपके पास लायबिलिटी है ये आउटफ्लो को जनरेट करती है। ये किसको जनरेट करती है? ये आपके पास आउटफ्लो को जनरेट करती है, राइट। तो एक तरफ मेरे पास मैच्योरिंग एसेट्स हैं जो इनफ्लो जनरेट करते हैं, एक तरफ मेरे पास मैच्योरिंग लायबिलिटीज हैं जो कि आउटफ्लो को जनरेट करती हैं, राइट। अब यहां पर मैच्योरिंग एसेट एंड मैच्योरिंग लायबिलिटीज के केस में, मैच्योरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के केस में अगर मैं लेट्स से 1 मंथ पीरियड की बात करता हूं, 1 महीने के पीरियड की बात करता हूं, क्योंकि यहां पर ना आरबीआई ने स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी आपके पास एक होती है स्टेटमेंट होती है जो आपने आरबीआई को भेजनी होती है। उसमें क्या होता है? डिफरेंट बकेट्स बनाई हुई है, जैसे कि आपका अगले दिन कितना अमाउंट मैच्योर हो रहा है, एंड फर्दर 2 to 7 डेज के बीच में कितना मैच्योर हो रहा है, 8 to 14 डेज की विंडो में कितना मैच्योर हो रहा है, 15 to 30 डेज की विंडो में कितना मैच्योर हो रहा है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट बकेट्स बनी हुई है, ठीक है। एंड उस बकेट्स के हिसाब से आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि आपके पास कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है, राइट। उस चीज को मेंटेन करके रखना पड़ता है। दैट इज द थिंग रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, जो आपके पास स्टेटमेंट होती है। अब यहां पर हम लेके चलते हैं टाइम होराइजन 1 महीने का। टाइम होराइजन 1 महीने का मतलब है कि 1 महीने का टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं, यानी कि 1 महीने के पीरियड में मैं देखता हूं कि मेरे पास टोटल इनफ्लो कितना आ रहा है, टोटल आउटफ्लो कितना है। लेट्स से द केस कि मेरे पास इनफ्लो जो है वो यहां पर 100 करोड़ का है, एंड मैंने जो पैसे पे करने हैं इसमें से मैच्योरिटी मेरे पास मैच्योरिंग लायबिलिटीज है वो यहां पर 90 करोड़ की है, वो यहां पर 90 करोड़ की है। तो डेफिनेटली मेरे पास मैच्योरिंग एसेट्स जो हैं दोज आर ग्रेटर देन मैच्योरिंग लायबिलिटीज ओवर देयर, यानी कि जो कैश इनफ्लो है वो ज्यादा है किससे? कैश आउटफ्लो से। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सर जाएगा ना, कोई लिक्विडिटी रिस्क तो नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू बी द पॉजिटिव गैप। दिस इज सेड टू बी द पॉजिटिव गैप। लेकिन पॉजिटिव गैप होना भी नुकसानदायक है। कैसे? क्योंकि मैं यहां पर इस पैसे का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल नहीं कर पाया अभी तक, मैं इस पैसे का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव गैप को भी यहाँ पर क्या करना होता है? कम करना होता है, सबसे कम रखना होता है, ओके। एंड सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? सेकंड सिनेरियो के केस में यहां पर जो मेरे पास कैश आउटफ्लो है
जो मेरे पास कैश आउटफ्लो है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द कैश इनफ्लो ओवर देयर, यानी कि जो मैच्योरिंग लायबिलिटीज है दोस आर पर्टिकुलरली ग्रेटर देन द मैच्योरिंग एसेट्स ओवर देयर। इस केस में क्या होगा, मैंने यहां पर मान लीजिए देने हैं 100 करोड़ लेकिन मेरे पास आए कितने 90 करोड़ आए, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव गैप हो जाएगा, दिस विल बी अ नेगेटिव गैप, इसको नेगेटिव गैप कहते हैं। एंड इस केस में आपको बाहर मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, आपको बाहर मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ेगा। एंड ये कौन सा रिस्क हुआ, दिस विल बी द लिक्विडिटी रिस्क ओवर देयर, दिस इज अ लिक्विडिटी रिस्क ओवर देयर। अब यहां पर की कंपोनेंट्स क्या होते हैं लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए। सबसे पहली बात, आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म जो आपके पास एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म जो आपके पास यहां पर सोर्सेज है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना। देखिए सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली डिपॉजिट्स, यही होते हैं ना। अब जो डिपॉजिट है वो मेरे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होंगे शॉर्ट टर्म, एक होंगे लॉन्ग टर्म। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर भी रिलाई नहीं करना। एंड फर्दर मुझे यहां पर वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखना है कि कितनी वॉलेटिलिटी है मेरे पास, कितनी वॉलेटिलिटी है यानी कि कितनी वैल्यू यहां पर ऊपर जाती है। लेट्स से देखिए कि मेरे पास कासा मेंटेन्ड है यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बैलेंस है एंड मेरे पास यहां पर 100 करोड़ का कासा है, लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी लेट्स से देखिए मेरे पास 70% है, तो ये काफी ज्यादा नुकसान वाली होगी ना। 70% पार्ट तो ऐसे हिल रहा है बार बार, ठीक है, तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। तो मुझे यहाँ पर वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ के साथ मुझे यहाँ पर जो यहाँ पर वॉलेटाइल सोर्सेज ऑफ फंडिंग है उसके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना, वॉलेटाइल सोर्स ऑफ फंडिंग के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना है। मुझे यहाँ पर फंडिंग सोर्सेज से लेकर डाइवर्सिफिकेशन को बना करके रखना है, फंडिंग सोर्सेज लेकर के डाइवर्सिफिकेशन को बना करके रखना है। साथ के साथ हिस्टोरिकल ट्रेंड कैसा रहा उसको भी देखना है, क्वालिटी ऑफ मैच्योरिंग एसेट्स को मेंटेन करना है ताकि जो पैसा आ रहा है वो आता रहे, ऐसा ना डिफॉल्ट हो जाए, मेरे पास लिक्विडिटी उससे भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर जो पैसा मेरे पास आना था, जैसे लिक्विडिटी रिस्क के केस में हमने टाइम रिस्क पढ़ा था ना, वी रेड अबाउट द टाइम रिस्क, यानी कि जो रीपेमेंट आपके पास आनी थी वो रीपेमेंट आपके पास आई नहीं, उसकी वजह से आपके पास लिक्विडिटी का इशू क्रिएट हो गया। क्योंकि मैं सोची बैठा था कि 80 करोड़ मेरे पास आएगा, उसमें से 60 करोड़ पे कर दूंगा, लेकिन 80 में से आए मेरे पास 55 करोड़ है, तो डिफॉल्ट हो गया ना ये तो इंस्टॉलमेंट्स का, उसकी वजह से नहीं आया, तो ये पर्टिकुलरली ये भी लीड करेगा, तो इसको टाइम रिस्क कहते हैं। ओके, तो यहां पर इस तरह से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फर्दर इन केस अगर फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं, दैट इज अ कंटिजेंसी प्लानिंग ओवर देयर, दैट इज अ कंटीजेंट प्लान ओवर देयर, यानी कि आगे आने वाले टाइम में जो रिस्क होगा उसके रिलेटेड पहले ही कोई प्लान बना के रखना, दैट इज अ कंटीजेंसी प्लान ओवर देयर, राइट। अब यहां पर जो रिस्क के कारण है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कारण क्या क्या होंगे, जब आपके पास ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर अभी पढ़ा था हमने क्या होता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते जा रहे हो, बहुत ज्यादा लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दी, बैंक गारंटी बहुत ज्यादा इशू कर दी, को एक्सेप्टेंसेस बहुत ज्यादा दे दी, तो ये कौन सी नेचर की है, दीज आर कंटिंजेंट लायबिलिटी नेचर, ये कंटिंजेंट नेचर की है ना यहाँ पे। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर है तो क्या होगा इससे, तो इससे पर्टिकुलरली क्या होगा, हो सकता है ना आने वाले टाइम में क्रिस्टलाइज हो जाए, पैसा पे करना पड़ जाए आपको, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको पैसा पे करना पड़ जाए। अगर आपको आने वाले टाइम में पैसा पे करना पड़ जाएगा तो आपको तो लिक्विडिटी आपकी चली गई ना, तो लिक्विडिटी रिस्क इंपोज हो जाएगा, तो ये कारण हो सकता है, इंटरनल फैक्टर हो सकता है। अगर बैंक जो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, शॉर्ट टर्म यहाँ पर जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं या होलसेल डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, तो भी बैंक के ऊपर खतरा मंडराया रहेगा। इसी तरह से अगर आपके पास गैप जो है नेगेटिव है, गैप जो नेगेटिव नेगेटिव गैप समझ गए ना अभी क्या होता है, अगर आपके पास नेगेटिव गैप है, अगर आप रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हो, यानी कि रैपिड एक्सपेंशन क्या करते हो, आपके पास लायबिलिटी साइड जो है वो आप बढ़ाते जा रहे हो एंड उसके साथ एसेट फटाफट सेंड यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हो, तो उससे भी लिक्विडिटी करंट आ जाएगा। अगर आपके पास कंसंट्रेशन डिपॉजिट है, यानी कि एक ही डिपॉजिट ऐसा है जिसका 100 करोड़ आपके पास पड़ा, अगर वो निकल गया तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है, तो वो भी दिक्कत होगी। आपने यहाँ पर जो लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें पैसा कम लगाया हुआ है, उस पर आपने पैसा कम लगाया, वो भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपके पास शॉर्ट टर्म रेजिलेंट जो फंड्स है वो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनल रीजन है। इसी तरह से एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं। एक्सटर्नल रीजन क्या होता है कि आपके पास जो डिपॉजिट है वो मार्केट सेंसिटिव है। मार्केट सेंसिटिव डिपॉजिटर कौन होता है, आज यहां पर इंटरेस्ट रेट आपके पास जो है, लेट्स से केस जो आपके पास आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है, कोई और बैंक जो है वो 8% देने लगे वो भाग जाएंगे, ओके। एंड फर्दर हो सकता है कि इकोनॉमिक शॉक की वजह से लोगों को ट्रस्ट ना हो एंड फर्दर वो पैसा निकालना शुरू कर दे, एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सही ना हो, जैसे कोविड के दौरान हुआ, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सही नहीं थी, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड फर्दर डिपॉजिट का ट्रस्ट हो सकता है कि अब सिस्टम में रहा ही ना, बैंकिंग सिस्टम में, उसकी वजह से भी हो सकता है पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो ये कुछ एक रीजन हो सकते हैं, एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क क्या होती है, सबसे पहली टाइप होती है फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क का मतलब है पॉकेट में 100 करोड़ है एंड यहां पर मैंने कमिटमेंट कर रखी है 120 करोड़ पे करने की, तो ये मुझे 20 करोड़ का डिफरेंस जो है ना मार्केट से उठाना पड़ेगा, दैट इज अ फंडिंग रिस्क ओवर देयर। अब जरूरी थोड़ा है कि मैं यहाँ पर रीजनेबल प्राइस के ऊपर 20 करोड़ रुपीज पिक कर पाऊं मार्केट से, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो ये रिस्क रहेगा। एंड फर्दर जो रिस्क रहेगा दैट इज अ मार्केट लिक्विडिटी रिस्क ओवर देयर। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क क्या रहता है,
मार्केट लिक्विडिटी रिस्क रहता है कि मैं मार्केट में अपनी पोजीशन को ऑफसेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं मार्केट में अपनी पोजीशन को ऑफसेट नहीं कर पा रहा हूं रीजनेबल रेट के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट है, मैं इसको मार्केट में सेल करना चाहता हूं, लेकिन मैं मार्केट में इसकी वैल्यू तो है 80,000 का एसेट है लेट्स से, लेकिन मैं मार्केट में इसको 80,000 के ऊपर सेल नहीं कर पा रहा हूं। दैट इज अ मार्केट लिक्विडेशन रिस्क ओवर देयर, दैट इज अ मार्केट लिक्विडिटी रिस्क ओवर देयर। अब यहां पर गवर्नेंस की बात करें तो जो आपके पास स्ट्रक्चर यहां पर आपके पास रहता है मार्केट रिस्क के केस में, वही लगभग स्ट्रक्चर इस केस में रहता है। क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फिर आपके पास मेरे पास यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आ जाएगी जो बोर्ड लेवल कमेटी होगी, फिर मेरे पास एल्को आ जाएगा, फिर मेरे पास एएलएम सपोर्ट ग्रुप आ जाएगा, एएलएम सपोर्ट ग्रुप आ जाएगा। सो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका रहता है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट ओवर देयर, दिस इज द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट ओवर देयर। अब लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस क्या रहती है? व्हाट इज टॉलरेंस लेवल? मैं टॉलरेंस लेवल सेट कर दूं कि लिक्विडिटी ना मेरे इससे नीचे नहीं चाहिए, मैं स्टैंडर्ड्स बना दूं, मैंने पॉलिसी बना दी एक, उसमें रिस्क टॉलरेंस लिमिट बना दी है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव्ड है, यानी कि मुझे यहाँ पर इतना तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, नॉर्मल टाइम्स में इतना तो रखना पड़ेगा, स्ट्रेस इवेंट में इतना रखना पड़ेगा, दैट इज अ टॉलरेंस लिमिट्स ओवर देयर। एंड फर्दर मैनेजमेंट कैसे की जाती है? पहले तो आइडेंटिफाई करो एंड फर्दर फिर उसको क्वांटिफाई करो। अब क्वांटिफाई करने के लिए मेरे पास दो अप्रोचेस है, एक मेरे पास स्टॉक अप्रोच है, एक फ्लो अप्रोच है। एक मेरे पास स्टॉक अप्रोच है, एक फ्लो अप्रोच है। स्टॉक अप्रोच के केस में हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं इस मेथड में। जैसे कि मेरे पास लिक्विड एसेट्स टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी कि मेरे पास वॉलेटाइल एसेट्स के ऊपर, वॉलेटाइल लायबिलिटीज के ऊपर मेरे पास कितने यहाँ पर शॉर्ट टर्म एसेट्स है, इस तरह के डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं एंड वो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से आप मेंटेन करके रखते हो। दैट इज व्हाट? दैट इज अ स्टॉक अप्रोच। एंड फ्लो अप्रोच के केस में क्या रहता है? आप फ्लो देखते हो कि पैसा आपका फ्लो कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप बकेट्स देखते हो, डिफरेंट बकेट्स को देखते हो कि आपका एक दिन में आपके पास कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको देख लिया, आपके पास शॉर्टफॉल कितना होगा उसको देख लिया, इसी तरह से आपने 14 डेज के पीरियड के लिए देख लिया, इस तरह से 15 टू 28 डेज के पीरियड के लिए देख लिया, सो ऑन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट? दैट इज अ फ्लो अप्रोच ओवर, वो फ्लो अप्रोच रहती है। तो जो जो हमारे पास स्टॉक अप्रोच रहती है उसके केस में डिफरेंट रेशियोज होती हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट, इन रेशियोज को फटाफट से देख लेते हैं। क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आइडिया ले लो। इस टाइम के ऊपर क्रैमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आइडिया ले लो। सबसे पहला पार्ट है दैट इज वॉलेटाइल लायबिलिटीज माइनस द टेम्परेरी एसेट्स, वॉलेटाइल लायबिलिटीज माइनस द टेम्परेरी एसेट्स डिवाइडेड बाय द अर्निंग एसेट्स माइनस द टेम्परेरी एसेट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो हमारे वॉलेटाइल यहाँ पर लायबिलिटीज हैं, जो यहाँ पर वॉलेटाइल हमारी मनी कह लो, वॉलेटाइल जो हमारे पास मनी है वो यहाँ पर बेसिक अर्निंग एसेट्स को किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट कर रही है उसके बारे में। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू कोर डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स, यानी कि मेरे पास यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? सोर्सेज ऑफ फंड्स। कौन से? कोर डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं, यानी कि जो कोर सोर्सेज ऑफ फंड्स है उनके बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे पास यहां पर जो टोटल मेरा एसेट बेस है, जो टोटल मेरा एसेट बेस है वो पर्टिकुलरली किस एक्सटेंड तक यहां पर पर्टिकुलरली सपोर्टेड है, किसके थ्रू? कोर डिपॉजिट के थ्रू सपोर्टेड है। ओके, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड लोन्स प्लस एसएलआर प्लस सीआरआर प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब चाहे लोन है, चाहे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, चाहे वो यहां पर कैश रिजर्व रेशियो है, चाहे मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है, चाहे मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है, ये सभी मेरे पास इलिक्विड नेचर के हैं। क्या है? इलिक्विड नेचर के हैं। ना ही मैं एसएलआर को खत्म कर सकता हूं, ना सीआरआर को खत्म कर सकता हूं, ना मैं फिक्स्ड एसेट को खत्म कर सकता हूं, ना लोन्स को एकदम से खत्म कर सकता हूं। ये सभी इलिक्विड है, यानी कि मेरे इलिक्विड एसेट्स का कितने इलिक्विड एसेट का जो पार्ट है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है किसको? टोटल एसेट्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जितने इलिक्विड लायबिलिटीज का पार्ट है, लायबिलिटी पर्टिकुलरली मेरे पास पैसा है ना वो देने वाला, अब पर्टिकुलरली वो तो इलिक्विड हो गया मेरे पास, इलिक्विड हो गया ना यहाँ पर, वो कितना पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, दैट इज द थिंग रिलेटेड। इसी तरह से मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द इलिक्विड एसेट्स जो कि यहाँ पर फाइनेंस हुए किसके थ्रू? कोर डिपॉजिट्स के थ्रू फाइनेंस हुए, उसके बारे में। ठीक है, एंड फॉर द इट्स टेम्परेरी एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी कि आपके पास एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल लिक्विड एसेट्स कितने? एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल लिक्विड एसेट्स, क्योंकि जो आपके टेम्परेरी एसेट्स होंगे वो लिक्विड एसेट्स हैं, जो आपके पास साथ के साथ अवेलेबल है, जो आपके पास साथ के साथ अवेलेबल है जिनको आप बेच सकते हो, वो टेम्परेरी एसेट्स हुए ना, तो ये होने जरूरी है। अब फर्दर इसके रिलेटेड पढ़ लो कि वॉलेटाइल लायबिलिटी कौन सी है। वॉलेटाइल लायबिलिटी यानी कि वो लायबिलिटीज जो अपने अगले एक साल में पे ऑफ करनी है, वो वॉलेटाइल लायबिलिटी है। टेम्परेरी एसेट की बात करूं तो आपके पास कैश हो गया, आपके पास सीआरआर एक्सेस में है वो हो गया, बैलेंसेस विद अदर बैंक्स हो गए, बिल परचेज डिस्काउंटेड हो गए एक साल तक के, वो सभी आपके पास टेम्परेरी एसेट्स हैं। अगर अर्निंग एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स में से अगर हम फिक्स्ड एसेट्स एंड बैलेंस है जो आपके पास करंट अकाउंट में, अगर दूसरे बैलेंसेस के पास एंड फर्दर लीजिंग के एसेट्स को निकाल दें, इंटेंजिबल एसेट्स को निकाल दें, तो जो आपके पास रहेंगे दोज विल बी द अर्निंग एसेट्स ओवर देयर, दोज विल बी द अर्निंग एसेट्स ओवर देयर। कोर डिपॉजिट कौन से होते हैं? कोर डिपॉजिट जैसे कासा होता है वो हमारे पास कोर डिपॉजिट होता है, प्लस जो नेटवर्क होता है वो आपका कोर डिपॉजिट होता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट। फिर बात आती है स्ट्रेस टेस्टिंग।
अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिनेरियोस बनाने, स्ट्रेस टेस्टिंग के केस में क्या करना है, मैं देखो नॉर्मल कंडीशन में तो देख लिया कि मेरे पास इतनी ज्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी जो है मेंटेन रखनी चाहिए, मैंने टॉलरेंस लेवल भी सेट कर लिया। स्ट्रेस टेस्टिंग के केस में मैं हाइपोथेकेशन लेता हूँ, मैं assumptions लेता हूँ, मैं हाइपोथेकेशंस लूंगा, मैं assumptions लूंगा, एंड उन हाइपोथेकेशंस एंड assumptions के बेस केस पे ऊपर मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि जो मेरे पास मॉडल है जिसके थ्रू मैं लिक्विडिटी को अपनी मैनेज कर रहा हूँ, क्या वो अप्रोप्रिएट है, मेरी लिक्विडिटी के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, एंड अगर एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा होगा तो मैं रीजंस को ढूंढूंगा एंड फर्दर उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। दैट इज अ स्ट्रेस टेस्टिंग ओवर देयर, दैट इज अ स्ट्रेस टेस्टिंग ओवर देयर। एंड फर्दर अगर इन स्ट्रेस टेस्टिंग रिजल्ट्स में वल्नरेबिलिटी दिखती है तो उसके केस में उसे साथ के साथ बोर्ड को यहाँ पर पेश किया जाएगा एंड उसके ऊपर एक्शन यहाँ पर साथ के साथ देखा जाएगा। ये जो रिपोर्ट होगी स्ट्रेस टेस्टिंग की, ये डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन सेंट्रल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी भेजी जाएगी साथ ही साथ। ओके, देन इट इज सीएफपी, दैट इज कंटीजेंसी फंडिंग प्लान। अब कंटीजेंसी का मतलब क्या, आपके पास कोई ऐसी दिक्कत पड़ गई जो एकदम से आ गई जो आपको पता नहीं था। अब ऐसे स्वेयर डिस्क्रिप्शन आने की वजह से आपके पास डेफिनेटली रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर फंड्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो सीएफपी जो है वो उसी प्लान से रिलेटेड है। यानी कि बैंक को एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि जब यहां पर स्वेयर लिक्विडिटी स्ट्रेस भी आएगा उस टाइम पर बैंक कहां से पैसे लेकर के आएगा ताकि बैंक के पास लिक्विडिटी जो है वो यहां पर बनी रहे एंड बैंक अपने फंक्शंस को चला पाए। एंड फॉर द इस तरह के जो सीएफपीज होते हैं उनको यहां पर टेस्ट भी करना चाहिए ताकि हम ये पता लगा पाए कि ये इफेक्टिव भी है या नहीं है। अगर इफेक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली उस केस में जो भी चेंजेस करने होंगे वो करो एंड साथ के साथ इनको रिव्यू भी करते रहना चाहिए। सो दैट इज द केस ऑफ द सीएफपी ओवर देयर। Further, it's related to overseas operations of the Indian banks branches and subsidiaries and branches of foreign banks in India. यानी कि जो हमारे ओवरसीज ऑपरेशन है, इंडियन बैंक्स की जो ब्रांचेस है बाहर एंड फर्दर बाहर के बैंक की जो ब्रांचेस है इंडिया में, दोनों के बारे में है। तो उसके केस में यहाँ पर वॉलंटरी रिस्क एक्सपोजर जो 10 साल से ज्यादा के वो अंडरटेक नहीं कर सकते हैं ये। यानी कि कोई भी बैंक गारंटी जो 10 साल की ज्यादा नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कमिटमेंट जो है 10 साल के ज्यादा लेंगे जिसकी वजह से कंटीजेंसी 10 साल की ज्यादा की पैदा हो। एंड फर्दर साथ के साथ ये अपनी रेजिलेंस को इस तरह से रखेंगे कि यहाँ पर इनकी सोर्सेज ऑफ फंड्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड वाले सोर्सेज होंगे, लॉन्ग टर्म फंड वाले सोर्सेज होंगे। दैट इज द थिंग रिलेटेड। एंड लिमिट्स जो यहाँ पर मैच्योरिटी मिसमैच के रिलेटेड बताई गई वो क्या कहा गया कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज जो है, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ऑफ फंड जो है दैट शुड नॉट बी फॉलोइंग 70% ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स ओवर देयर। यानी कि जो भी मेरे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जितने मेंटेन्ड है, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज है कम से कम 70% होने चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स के। ओके, ये पहली गाइडलाइन है। दूसरी क्या है कि जो मेरे पास लॉन्ग एंड मीडियम टर्म है, जो मेरे पास लॉन्ग एंड मीडियम टर्म सोर्सेज हैं, दो शुड बी एटलीस्ट 80%, दो शुड बी एटलीस्ट 80% ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म एसेट्स ओवर देयर। एंड आपके पास देखिए शॉर्ट टर्म एसेट्स या शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपके पास 6 महीने तक के लिए होते हैं एंड 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के लिए जो होते हैं वो आपके पास किसके लिए होते हैं, वो आपके पास मीडियम टर्म होते हैं। एंड जो आपके पास 3 साल से ज्यादा लंबे टाइम के लिए होते हैं वो आपके पास लॉन्ग टर्म में आते हैं। ठीक है, एंड फर्दर जहां पर आपके पास कंसोलिडेटेड पोजीशन किसी भी करेंसी को लेकर के पूरी की पूरी बैंक शीट के केस में, बैलेंस शीट के केस में, पूरे बैंक की बैलेंस शीट के केस में आपके पास कंसोलिडेटेड शीट जो है उसमें अगर आपके पास कंसोलिडेटेड पोजीशन जो है किसी करेंसी की, लेट्स से द केस यूएसडी जो है, वो यहां पर उसकी पोजीशन टोटल यहां पर जो मेरे पास एसेट्स हैं उसकी 10% से ज्यादा है, उसके लिए आपको यहां पर लिक्विडिटी पोजीशन यूएसडी के लिए अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी, यूएसडी के लिए ड्राफ्टिंग अलग से करनी पड़ेगी। एंड मान लीजिए कैनेडियन डॉलर के लिए भी मेरे पास अलग से है, तो यहां पर भी मुझे लिक्विडिटी पोजीशन यहां पर कैनेडियन डॉलर के लिए अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड नेटिंग ऑफ द इंटर करेंसीज इज नॉट अवेलेबल। ऐसा नहीं आप ये कहते हैं कि मेरे पास यहां पर यूएसडी इतना है एंड मैं यूएसडी इतना ले सकता हूं एंड सीएडी इतना ले सकता हूं, इस तरह से आप नेटिंग नहीं कर सकते। आपको यहां पर पर्टिकुलरली मेंटेन करना पड़ेगा किसको, जितना फंड उस करेंसी में आ रहा है, जहां पर कंसोलिडेटेड पोजीशन 10% से ज्यादा है वहां पर अलग से उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए आपको लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड। एंड फर्दर जो मॉनिटरिंग होगी सिस्टम की वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, इंटरनेशनल डिवीजन जो वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करेगा एंड जो कोई भी मिसमैच होगा एसेट लायबिलिटी मिसमैच के केस में वो यहाँ पर करेंसी वाइज मेंटेन करेगा एंड उसकी रिपोर्टिंग करेगा। एंड फर्दर जो भी यहाँ पर आपके पास डिटेल्स होती हैं आपको उस रिपोर्ट्स को मेंटेन करना पड़ता है एंड फर्दर स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। टोटल 5 आपके पास रिपोर्ट्स है जो जमा करनी पड़ती हैं। एंड फर्दर ये 5 रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, अगर आप डोमेस्टिक करेंसी है एंड आपकी यहाँ पर इंडियन ऑपरेशंस है उसकी फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाएगी, एंड फॉरेन करेंसी है एंड फर्दर इंडियन ऑपरेशंस है तो फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाएगी। अगर आपकी कंबाइंड जो इंडियन ऑपरेशंस है या चाहे फॉरेन करेंसी में चाहे इंडियन करेंसी में उसकी भी फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाएगी। अगर यहाँ पर ओवरसीज ऑपरेशंस है यानी कि बाहर ऑपरेशंस है उसके लिए मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट जाएगी। इसी तरह से जो आपकी कंसोलिडेटेड बैंक ऑपरेशंस है यानी कि बाहर अंदर के टोटली सारे के सारे जो भी यहाँ पर आपके ऑपरेशंस है उसकी भी आपके पास मंथली एंड आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, एंड फर्दर इस पर्पस के लिए इन्होंने क्या कहा है, फर्दर इस पर्पस के लिए क्या है कि जो यहाँ पर फोर्टनाइटली बेसिस पर रिपोर्ट जानी है वो 15 तारीख को जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट डेट ऑफ द मंथ का मतलब है कि यहाँ पर
यहां पर पर्टिकुलरली जहां पर आपके पास हॉलीडे पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए कि फोर्टनाइटली बेसिस पर जानी है रिपोर्ट, तो वो एक तो 15 तारीख को जाएगी और एक लास्ट डेट जो मंथ की है उस डेट को जाएगी। अगर उस दिन छुट्टी आ गई है तो यहां पर उससे एक दिन पहले रिपोर्ट चली जाएगी। एंड फर्दर जहां पर हम मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पर कर रहे हैं, वहां पर मंथ एंड के ऊपर क्वार्टर एंड के ऊपर रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर समझने वाली है। तो ये रिपोर्ट्स है। एंड फर्दर ऊपर जो यहाँ पर बनाया ना, ये दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। अब इसके केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया यहाँ पर कि आप यहाँ पर ना डिफरेंट बकेट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, डिवाइड कर लो। जैसे अगले दिन आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, 2 से 7 दिन में आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। एंड फर्दर 8 to 14 डेज में, 15 to 30 डेज में क्लासीफाई कर लो। यानी कि मुझे पता है ना मेरे पास एसेट है, मैंने यहाँ पर एक लोन दिया, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये लोन मैच्योर कब हो रहा है। एज पर द रीपेमेंट शेड्यूल मुझे पता लग जाएगा कि ये लोन कब मैच्योर हो रहा है। एंड सेम वे में अगर मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन है मेरी, यानी कि कोई लायबिलिटी है, तो मुझे पता होगा इस लायबिलिटी को कब मैंने पे ऑफ करना है। ठीक है, उस वे में हम यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी जो वो मेंटेन करके, इसके बेस पर ना केस स्टडीज आपको केस स्टडी सेक्शन में मिल जाएंगी, उसको जरूर गो थ्रू करना है। फटाफट से यहाँ पर केस स्टडीज को गो थ्रू कर लेना स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी मैनेजमेंट के ऊपर। इसके रिलेटेड केस स्टडी के काफी चांसेस आने के इस बार। ठीक है, तो काइंडली इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो दैट विल बी और रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड आई होप कि आपको यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना। आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGK and start preparing for the same। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.